Hello, everyone. Very logical day to all of you, and here, welcome to the Vocab Wizard. So, Vidya Vocab Wizard, that is the fourth one that we are taking now, and let's see how you perform in this. And all the questions I would say are actual sentences from the newspapers of the previous week, right? So, if you have been reading consistently, means the editorials that I suggest, the opinion page, the idea explained page, be it the Hindu or the Indian Express, कहीं से भी आ सकता है. And if you have been there in the Vidya clad must read articles, if you read those articles, तो आपको ये sentences तो मिल जाएंगे. और कुछ नहीं तो at least you should be able to understand the context of the sentence and then come up with the right answer or eliminate the rest of the three. ठीक है. अब हम करेंगे वैसे ही. आपके स्कोर उसमें नहीं आएंगे, बट यू विल बी गिवन लाइक द 5 seconds for the question and 10 seconds for answering the question. So mark your own answers, right? ये विजार्ड ऐसा है जिस तरीके से आपका होगा. तो देखो आप 10 seconds में सही आंसर मार्क कर सकते हो या नहीं, और फिर एंड में देखो कि 30 में से आपके कितने आंसर सही थे. So keep a track of that, as many correct answers as you get every week for this Monday mantra. ठीक है? So let's see. Here's the first question. I'll read the sentence out, right? In contemporary, Dash is reduced to partisan disputes of his time vis-a-vis the Congress-led national movement and the British colonial state. ठीक है, क्योंकि कई बार इसमें फुल उसमें नहीं आएंगे. अब देखो 10 सेकंड भी हो गए हमारे पास. अब फ्यू ऑफ यू अगर मार्क किया होगा तुमने, तो कंटेम्पररी टाइम्स किया होगा, जो कि बड़ा एक ट्रैप था. कंटेम्पररी टाइम्स यानी आजकल का जमाना या उस वक्त का दौर, जो भी होगा, लेकिन ये एक फ्रेज तो सही है, but it was not related to what the sentence was saying. In the sentence, you had this word partisan disputes, right? Vis-a-vis the Congress-led national movement and the British colonial state, right? So what was required there was not in contemporary politics. Out हो जाता है polemics, times और essays. देखो polemics का meaning क्या होता है? I'll tell you wait. ठीक है, अब देखो बीच में मैं स्विच करते जाऊंगी. तो polemics का meaning होता है ऐसे essays, right, which are written by the people to create or to express controversy, right? तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं वो. पार्टिसन और पोलेमिक्स को पोल से रिलेट करो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दैट मीन्स द एक्सट्रीम ends. This is another extreme end. So such essays which are written to express the extreme end of only one side, ठीक है, वो हो जाते हैं पॉलिमिक्स. ऐसे essays को पॉलिमिक्स कहते हैं. Second question. There is no democracy without the existence of and respect for opposition. The tyranny of the majority is dash to democracy. What is it to democracy? ठीक है. सो द टिरनी का मतलब वो एंटीथेटिकल हो गया. आप डेमोक्रेसी बोल रहे हो और फिर उसके बाद क्रूरल्टी करते हो. टिरनी मतलब क्रूरल्टी, राइट? इट इज एंटीथेटिकल टू डेमोक्रेसी. एंटीथेटिकल मीन्स एंटीथीसिस, ऑपोजिट आइडियाज. टू ऑपोजिट आइडियाज गिवन टुगेदर आर एंटीथीसिस. ठीक है, पर एंटीथीसिस इज अ नाउन फॉर्मेशन, तो हमें वो अवॉइड करके एंटीथेटिकल टू डेमोक्रेसी आएगा. या तो चीज एंटीथीसिस होती है या तो एंटीथेटिकल टू समथिंग होता है. ठीक है, सो वी नीड दिस फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड इंस्टेड ऑफ एंटी क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेटिकल. ठीक है, एंटी क्लाइमेटिकल ऐसे कुछ नहीं होता है, एंटी क्लाइमेक्स के हिसाब से होता है. अगेन द नाउन एंड द एडजेक्टिव फॉर्मेशन.
ठीक है, थर्ड सेंटेंस. Instead of an embrace, however, Garcia Marquez received a punch to the face. Theories dash like tropical wines. तो theories क्या होंगी? Tropical wines के जैसे बढ़ेंगी, उगेंगी. Right. So we have the word thrive. Sorry, we have the word bloomed. Right. यहाँ पर जो word thrived है, उसका मतलब होता है कि खा के जिंदा रहना is to thrive. Right? Like monkeys thrive on bananas and all those things. So ants thrive on sugar, ऐसे करके. तो thrive, अच्छा disseminate यहाँ पर नहीं होगा because what we need is with the word theories. So do the theories disseminate? No, theories are established, theories are propounded. तो disseminate तो ideas होती है. तो हमें ये देखना है कि हम जो भी इधर एक्चुअल वर्ड इंसर्ट करते हैं, इट शुड बी मैचिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस आल्सो. सो थ्योरीज डू नॉट डिसेमिनेट लाइक दिस. डिफ्यूज, अगेन द आइडियाज डिफ्यूजन या द फ्रेग्रेंस, डिफ्यूज यानी पूरे एटमोस्फियर में इसी तरीके से फैल जाना. ठीक है, सो डिफ्यूज थ्योरीज के साथ आउट हो जाएगा. ब्लूम्ड का मतलब क्योंकि उससे एक पंच टू द फेस मिला. राइट, सो इंस्टेड ऑफ एन एम्ब्रेस ही गॉट अ पंच टू द फेस. इसके ऊपर कई सारे लोगों ने अपनी थ्योरी बनाना शुरू कर दी, तो थ्योराइजिंग कहते हैं उसे. सो नाउ थ्योरी इज ब्लूम्ड. ये बहुत सारी सब अपनी अपनी अटकलें लगाते हैं कि ऐसे क्या हुआ होगा जो उसे पंच लगा या मिला. दैट इज हाउ, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थ्योरीज ब्लूम्ड. So his political turn, which saw him run for the presidency of Peru in 1990, drew the dash of both the left and the right. Drew what? ठीक है, अब हमारे पास चार ऑप्शन है. यू डोंट ड्रॉ एम्बिग्विटी. ड्रॉ मतलब पुल करना, तो यू डोंट ड्रॉ एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी इज कंफ्यूजन. ड्रॉ एम्बेरसमेंट, नो, यू फील एम्बेरस्ड अबाउट समथिंग, so you don't draw embarrassment, right? Secondly, you draw allure, पर allure already means to attract. ठीक है, एल्योर, एल्योरिंग का मीनिंग होता है अट्रैक्ट करना. ठीक है, सो यू कैन ड्रॉ एल्योर. अट्रैक्ट, अट्रैक्टिव होता है, करिश्मा होता है, तो आप ड्रॉ करिश्मा थोड़ी कर सकते हो. जो किसी को अपनी तरफ पुल करेगा वो करिश्मेटिक होगा. ठीक है, सो यू कैन ड्रॉ एल्योर. दीज आर टू सिमिलर वर्ड्स, तो रिडंडेंसी हो जाती है. यू ड्रॉ ओप्रोबियम. ना ओप्रोबियम वुड मीन, I'll write down a few words. Opprobrium is flack. यू ड्रॉ क्रिटिसिज्म. अब इसके साथ देखो ड्रॉ वर्ड आ जाता है. ड्रॉ मतलब टू पुल. फ्लैक, क्रिटिसिज्म, राइट. देन सेंजर और कैस्टिगेशन. ठीक है, इसका मतलब आपने अपनी तरफ लोगों का क्रिटिसिज्म पुल किया है इन दैट मैनर. नेक्स्ट क्वेश्चन. By the time the Nobel Prize came to him in 2010, Vargas Llosa had dashed his reputation as a literary colossus. What did he do with his reputation? क्या कर लिया था उन्होंने? उन्होंने अपने अपने इसको क्या बोलते हैं, रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग बना लिया था. दैट इज सीमेंटेड. राइट, सो द वर्ड सीमेंटेड मीन्स टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्ग. दैट इज द वर्क ऑफ द सीमेंट as a noun. So cemented becomes the verb formation there. We can't use the word raised because you don't raise a reputation. ठीक है, ये मिसमैच हो जाएगा. रेज्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म कर देना. RAZED. रेज्ड होता है जब फायर से कोई चीजें या बिल्डिंग्स खत्म हो जाती ना, दे वर रेज टू द ग्राउंड. जैसे बुलडोजर कैसे होता है, बुलडोजर बुलडोज कर देता है पूरी तरीके से, तो दैट इज रेज. और डॉक्टर्ड का मतलब होता है कि ट्रीट करना. ठीक है, इस हिसाब से अगर मैं आती हूँ इधर वापस, तो रेस का वर्ड
ठीक है, आई विल कम अप विद द वर्ड रेज्ड, और रेज्ड का मीनिंग होता है इरेडिकेट। ठीक है, वाइप आउट कंप्लीटली, बुलडोज्ड, दिस इज द मीनिंग। ठीक है, आप ये लिख लो पहले। So the SC has a formidable tradition of wisdom and dash in upholding the separation of powers, maintaining a fine balance. So what does the SC have? It has sobriety, right? तो solemn, there would be few who would mark solemn, लेकिन solemn का मतलब होता है serious, right? तो जो seriousness, wisdom के साथ serious क्या होता है? Solemn is a solemn pledge, it's a mood, राइट? तो विजडम यू नीड अनदर नाउन फॉर्मेशन देयर। तो विजडम के साथ क्या? सोब्रिटी। सोब्रिटी इज नॉट गेटिंग इमोशनली अटैच्ड टू योर डिसीशंस एंड ऑल। ठीक है, पॉलिसीज हैं, डिसीशंस हैं, लॉज हैं, तो आप कैसे इमोशनली अटैच होकर कोई लॉज नहीं बनाएंगे। तो ऐसी रूलिंग जब लेके आती है तो फॉर्मिडेबल ट्रेडिशन ऑफ विजडम एंड सोब्रिटी, वो किसी से भी अटैच नहीं होती है। डिटैचमेंट, ऑब्जेक्टिव, ये वर्ड होता है सोब्रिटी का मीनिंग सोबर होना। सेगेसिटी, और अच्छा डिस्क्रिशन यानी अपने हिसाब से जो सही होता है, जुडिशियस होता है वो करना। सेगेसिटी ऑल्सो वुड मीन द सेम, right? Sagacity means sagacious, or sagacity is intelligence. ठीक है, being judicious, ये होता है sagacity का मीनिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। It has understandably raised alarm bells within the government and dash apprehensions that the court may be overstepping its boundaries. So, if you marked heightened, you are wrong. Why? Because you can't use uh, raised alarm bells and what? And done something again, no? तो एंड हाइटेंड एप्रीहेंशंस नहीं, हाइटेंड यानी उसको बढ़ाना। अभी तो उसे अलार्म बेल्स लगाए हैं, मतलब वार्निंग साइन है। अगर वार्निंग साइन है तो फिर आपके पास आ जाएगा समथिंग दैट स्पार्क्स, राइट? इट इज द इनिशियल थिंग, स्पार्क्स आते हैं पहले और फिर कुछ होता है, राइट? तो स्पार्क होता है टू इनिशिएट, टू स्टार्ट समथिंग। हाइटेंड होता है द थिंग इज ऑलरेडी देयर एंड देन यू आर हाइटनिंग इट, बट दैट टू अपने आप हो जाता है। हाइटेंड एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। यहाँ पे भी सोर्ड आता है, सोर्ड मीन्स टू फ्लाई वेरी हाई, राइट? एंड देन प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड इज इंस्टिगेट करना, भड़काना। भड़काना नहीं, ये स्टार्ट करना होता है, वो भड़काना होता है। तो सेंटेंस में हमें इंस्टिगेट या प्रोवोक नहीं चाहिए, राइट? सो यू नीड टू सी which words are fitting in the sentence. The apex banking regulator is dash comments on the proposed regulations until May 12. ठीक है, May 12 तक वो कमेंट्स क्या कर रही हैं? कमेंट्स आपसे मांग रही हैं वो। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेटर है और वो हमसे कमेंट्स मांग रहे हैं। आस्किंग फॉर होना चाहिए, सिर्फ आस्किंग आउट होगा, आस्किंग फॉर हो जाता है, राइट? तो सर्चिंग, अगेन सर्चिंग कमेंट्स नहीं होगा ना, सर्चिंग फॉर कमेंट्स होता तो चलो अलग बात थी, वो भी वैसे फिट नहीं होगा। वाई? बिकॉज दे आर नॉट सर्चिंग फॉर कमेंट्स, दे आर इनवाइटिंग द कमेंट्स, राइट? सो व्हेन दे इनवाइट की, ठीक है, तो दैट इज सॉलिसिटिंग। एडवांसिंग इज प्रोवाइडिंग एंड इनवाइट इज टू सॉलिसिट, कि ठीक है हमने ये पॉलिसी बनाई है या कुछ नया बनाया कि आप इसके ऊपर कमेंट्स कर लो। ठीक है, इस हिसाब से उसे सॉलिसिट कहते हैं, टू सॉलिसिट समबडीज हेल्प और समबडीज ओपिनियन। तो वी आर आस्किंग फॉर और रिक्वेस्टिंग और प्लीडिंग फॉर दैट ओपिनियन, राइट?
Ninth, on the other, it will be a delicate balancing act for the Prime Minister, who also knows she must be careful to maintain her dash to Italy's EU partners. Maintain her what? अब अगर तुमने अलायंस मार्क किया है तो यू डोंट मेंटेन एन अलायंस, ठीक है? तो और अगर अलायंस टू नहीं आएगा, अलायंस विथ समबडी आएगा. अगर अलायंस होता भी है तो अलायंस विथ आएगा, अलायंस टू नहीं आएगा. टू मतलब किसी की तरफ, राइट? यू नीड टू मेंटेन व्हाट? योर ऑनेस्टी, योर लॉयल्टी, योर सिंसेरिटी टू समबडी, एंड देयर आर द ईयू पार्टनर्स. तो ये वो केस है जहां पे इटली प्राइम मिनिस्टर मेलेनी यूएस गए और यूएस में उन्होंने जो भी बात करी या करने वाले हैं, उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अपने ईयू पार्टनर्स के साथ जो लॉयल्टी है उसे खराब ना करे. तो शी हैज टू मेंटेन दैट लॉयल्टी. इट वाज अबाउट दैट मैटर, राइट? तो नाउ इवन इफ यू हैव मार्क मेंटेन योर डिग्निटी, तो इट वाज ओनली हाफ द फ्रेज, राइट? सो दैट मीन्स दैट वाज अ ट्रैप. नाउ वो मैंने तो डिग्निटी ऐसे लगाया था, तो मुझे पता था कुछ लोग तो डिग्निटी मार्क करेंगे, तो फिर मेंटेन योर डिग्निटी नहीं आएगा, मेंटेन योर एलिजेंस आ जाएगा और टू योर ईयू पार्टनर्स. एसोसिएशन भी फॉर्म्ड हो जाता है. 10th question. The AAP government acknowledged the complexity of Delhi's air pollution problem, but often used that to paper over its dash. तो उसने acknowledge तो किया, ठीक है, लेकिन उसे फिर कवर अप भी किया. किन चीजों को कवर अप किया? एब्डिकेशंस को, राइट? अब एब्डिकेशंस क्या होते हैं? एब्डिकेशंस मतलब आपकी रिस्पॉन्स. एब्डिकेशंस होते हैं जो आपने छोड़ दिया है, त्याग दे दिया है. तो आपने क्या त्याग दिया है? इस कंटेक्स्ट में आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज त्याग दी है. आपने नहीं, एएपी ने, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज त्याग दी हैं, छोड़ दी हैं, ठीक है? और इसको कैसे किया उन्होंने? पेपर ओवर कर दिया, राइट? सो इट एक्नॉलेज्ड, मान लिया कि हाँ दिस प्रॉब्लम इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. पर सिर्फ मानने से उन्होंने, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि उसको हटाना है, कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करना है या पोल्यूशन को कम करना है. एंड देर आर एंडलेस वेज एंड मीन्स टू डू इट. It is not that every year the people need to suffer about that pollution part, right? So every year he acknowledged कि हाँ ऐसा है, pollution ज़्यादा है, हो रहा है, हाँ. But then not taking a step in that direction is he is leaving all that responsibility, so that is abdication. Blunders और challenges उसमें fit नहीं होगा. Paper over में you don't paper over your challenges. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक हेडिंग थी, अ वाटर डैश लेसन फ्रॉम द महाकुंभ. इफ यू हैव रेड दिस हेडिंग यू विल बी एबल टू कम टू द आंसर. मतलब सीखना क्या है महाकुंभ से? वाटर रेजुविनेशन था. रेजुविनेशन होता है टू बिल्ड, टू बी यंग अगेन, टू री एनर्जाइज. तो यंगस्टर्स में जैसी एनर्जी होती है उसी तरीके से एनर्जी लेके आना, तो वो रेजुविनेशन होता है. रिवाइवल होता है जो चीज सिस्टम से बाहर होती जा रही है, जो चीज खत्म होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, उसको आप फिर से जिंदा करो, तो दैट इज रिवाइव, राइट? तो रिवाइवल के बदले हमारे पास रेजुविनेशन आएगा. यू नीड टू मेक दैट वाटर कम अलाइव, नॉट अलाइव अगेन, बट बिकम यंग एंड फ्रेश अगेन. So if you had marked water contamination, but you don't learn a lesson of water pollution or water contamination, so we needed to come up with this lesson. Water contamination and pollution and contamination are ruled out on this basis of the word lesson. What is to be learned is the water rejuvenation and not revival. Twelfth. Chalo, 13th day. It is time to bring the dash of culture with river ecologies to the center of analysis for an Indian model of river rejuvenation and water conservation.
So to bring, so you don't bring the ideologies of culture with, ठीक है, हमें क्या चाहिए कि आपको कल्चर को रिवर इकोलॉजीज के साथ ब्लेंड करना है, ठीक है। तो ब्लेंड करने के लिए आपके पास वर्ड कॉन्फ्लुएंस है। देखो, कॉन्फ्लुएंस में यू हैव द वर्ड फ्लू, एंड फ्लू मीन्स फ्लो, ठीक है, एंड कॉन मीन्स join or coming together. So confluence actually means where the rivers would come together, join and then flow together. ठीक है, they would come, एक एक मीटिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर वहां पे मिल जाएंगे, जॉइनिंग संगम नदियों का, और फिर एक डायरेक्शन में बहना, उसे कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द रिवर्स। इन दिस केस व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, कल्चर विद द इकोलॉजी। तो आप आइडियोलॉजीज ऑफ कल्चर और सोशल या और क्या था उसमें, नथिंग, मतलब यू वोंट बी एबल टू मैच दैट विथ कल्चर चेंजेस, आइडियोलॉजीज और मैनेजमेंट ऑफ कल्चर, ये फिट नहीं होगा हमारे पास। तो कॉन्फ्लुएंस किस किस का होगा, कल्चर का और इकोलॉजीज, कल्चर विथ रिवर इकोलॉजीज, ठीक है, दैट इज व्हाट वी नीड कॉन्फ्लुएंस फॉर। A Harvard University study called it an dash mega city. Built in just 8 to 10 weeks in the belly of the river, the city is unbuilt as swiftly. तो बिल्ड भी हो गई और अनबिल्ड भी हो गई। तो जो ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा वो एफिमेरल, यहां से समझ में आ जाता है जस्ट 8 to 10 weeks। तो इन जस्ट, एंड देन इट वाज बिल्ट, एंड देन इट वाज अनबिल्ट। सो बिल्ट, जस्ट और अनबिल्ट, तीन वर्ड्स हैं इंडिकेट करने के लिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं, कुछ ऐसी जो कि कम समय के लिए होती है, राइट। सो दैट इज, नाउ राइट डाउन द वर्ड्स, टेम्पररी, transient, all these are words for ephemeral, fleeting, right? You get another word से volatile है, fleeting है, mercurial हो सकता है, मतलब short lived, सबका बेसिक वर्ड है short lived, ठीक है। So you can write this. We'll move to the next question now. Come on. Instead, they are influenced by the dash trajectory of Bangladesh's domestic politics, which has oscillated between periods of military rule and fragile democratic transitions. So I had given you the hint before that. ये कैसे मिलेगा हमें, वॉलेटाइल वर्ड कैसे आएगा, अभी हमने लिखा, और ये आ जाता है ऑसिलेशन से। ऑसिलेशन बिटवीन द पीरियड दिस एंड दिस, ए एंड बी, वन एंड टू, ऑसिलेशन होता है पेंडुलम का टू एंड फ्रो मोशन, राइट। तो अगर टू एंड फ्रो मोशन है तो किसी एक जगह पे ज्यादा समय तक नहीं रहता है, तो वो हो जाएगा वॉलेटाइल। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है, दे आर इन्फ्लुएंस बाय द वॉलेटाइल ट्रेजेक्टरी ऑफ बांग्लादेश domestic politics, which are oscillated between so and so. Now I have vociferous, I have veracious, right? So I'll give you the meanings of those words. Vociferous has to do with voice, right? Related to voice. So where everybody speaks out, right?
टू वॉइस योर ओपिनियन। जब बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं तो वो वोसिफरस होगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारे पास वर्ड विरेशियस। अब यहाँ पर विरेसिटी वेर को रिलेट करो ट्रू से, राइट? सो इट इज वेरासिटी, ठीक है, इट इज वेरी, इट इज वेरीफाई। तो आई एम गिविंग यू द वर्ड्स विथ VER। तो वेरीफाई, वेरिफिकेशन, अब देखो मिल गए ना वर्ड्स आपको। तो वेरेशियस इज ऑथेंटिक, ठीक है। वोसिफरस इज एवरीबडी स्पीकिंग आउट रिलेटेड टू वॉइस। नेक्स्ट पे आते हैं। The world's wealthiest and the most elite US university, Harvard, has dashed with President Donald Trump over a range of issues. क्या कर दिया उन्होंने? इश्यूज हैं, तो इश्यूज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ लॉक्ड हॉर्न्स। लॉक्ड हॉर्न्स मतलब आमने सामने, where there are two cows fighting each other, two bulls fighting each other, they would lock their horns there, राइट? उनके सींग जो है, सींगों से लड़ते हैं वो, उसे कहते हैं लॉक्ड हॉर्न्स। अब यहाँ पे कौन कौन है? एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप है, राइट? तो दे हैव लॉक्ड हॉर्न्स ऑन वेरियस इश्यूज। तो एट लॉगरहेड्स नहीं होता है, यू आर एट लॉगरहेड्स, राइट? यू डोंट, यू हैव नॉट लॉक्ड हॉर्न्स, वहां पे हैज नहीं आएगा, हैज एट लॉगरहेड्स नहीं आ सकता। आर एट लॉगरहेड्स होता है, इसका मतलब हमेशा तू मैं चलती रहती है। लेकिन फिस्टिकफ्स भी नहीं आएगा, क्योंकि फिस्टिकफ्स का मतलब होता है हाथापाई करना, राइट? वेर दे कम टू ब्लोज, देन दैट इज फिस्टिकफ्स, फिस्ट और कफ, ठीक है। ग्रोन हॉस्टाइल इज हैज ग्रोन हॉस्टाइल, हैज ग्रोन हॉस्टाइल विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। वहां पे इतना सिंपल सा वर्ड है, पर हैज ग्रोन हॉस्टाइल नहीं आएगा। मतलब ऐसे हर बात पे उसको लड़ना है ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे ओवर रेंज ऑफ इश्यूज भी है। सो दैट डजंट फिट द कंटेक्स्ट और डजंट फिट द सेंटेंस, यू कैन से। कंटेक्स्ट वाले ठीक है। सो पाकिस्तान हैज इन एवरी केस dash serious efforts to punish the masterminds who have unleashed terror in India। क्या किया क्या है इन्होंने? एवरी केस मतलब हर बार, हर बार जब इंडिया ने एफर्ट्स दिए हैं कि चलो जिसने टेररिस्ट एक्टिविटीज को वो किया है, परपिट्रेट किया है, तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो पाकिस्तान ने क्या किया है? इंडिया का साथ दिया है या इंडिया को रोका है? तो अगर तुमने स्टोन वॉल्ड किया तब तो सही है। स्टोन वॉल बड़ा आसान सा है। यू वॉल ऑफ स्टोन मीन समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू। सो पाकिस्तान है स्टोन वॉल्ड ऑल द सीरियस एफर्ट्स, उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया है। नाउ ग्रिडलॉक्ड एंड स्ट्रेट जैकेटेड मीन्स यू आर अनएबल टू मूव एनी हाउ, राइट? वे यू आर देयर इन अ ग्रिड, ठीक है, और इन अ जैकेट, स्ट्रेट जैकेट। अब ऐसे लिटरली समझ के देखो, स्ट्रेट जैकेट यानी हाथ पांव हिलते नहीं। तो अगर हाथ पांव नहीं हिलते हैं, यू कांट जस्ट, यू डोंट इवन हैव एल्बो रूम टू मूव योरसेल्फ, सो यू आर फिक्स्ड देयर। एंड इफ यू आर इन फिक्स्ड, that means you have no freedom, no space to move about. But this is not about giving space to move about, it is about letting somebody proceed, राइट? सो फिर जितने एफर्ट्स मारे उसमें आगे बढ़ने नहीं दिया, तो वहां पे एक पत्थर की दीवार बना दी, तो उसे स्टोन वॉल कहेंगे, एंड नॉट स्ट्रेट जैकेटेड एंड gridlocked. Bashed is to be hit very hard. So, Puri, who is also the president of the CII, believed that India would be able to dash as it is already in discussion with multiple trade partners. Trade partners हैं, आगे पढ़ लेती हूँ, such as the US, UK and the EU to forge bilateral deals which will facilitate trade and investment. So it is weather the storm. Puri, who is also the president of the CII, believed that India would be able to weather the storm का मतलब होता है to face the repercussions,
या सामना कर लेना, रिपरकशंस नहीं, सामना कर लेना हिम्मत से, उसे कहते हैं टू वेदर द स्टॉर्म। ठीक है, कि वो कर पाएंगी। फेस द म्यूजिक होता है कि आपने कुछ गलती की है और उसका नतीजा भुगतना है, टू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। फेदर इट्स नेस्ट और एक्स टू ग्राइंड, मतलब यू आर डूइंग समथिंग that is going to benefit to you. You agree to something. Why? Because you have some vested interest in it. तो कुछ ना कुछ तुम्हारा भी उसमें दांव पे लगा हुआ है, इसीलिए तुमने उस बात के लिए हाँ बोली है। जब ऐसा केस होता है तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर फेदरिंग योर नेस्ट और यू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, तो इस केस में दोनों नहीं है, इट इज वेदर द स्टॉर्म, यानी सामना करना। Indian cricket board's move to rein in monster cricket bats should pass the gauge test was a long overdue measure to restore the game. Okay. Now see, it is to restore what? I need something that should be restored, but there should be a balanced word with it. So you can't use equilibrium, balance, दोनों fit नहीं होते हैं. Adjusted balance नहीं. Adjust the balance हो सकेगा, but you can't restore adjusted balance. It is skewed balance. So you need to restore the skewed balance. Balance is skewed is tilted. तो जो tilted है उसे सही लेके आना है। ठीक है, tilted होता है, inclined होता है, तो जहां पे झुकाव होता है ना वो बैलेंस एक तरफा है। ठीक है, ये वो वाला मैटर था जहां पे क्रिकेट बैट्स के बारे में बात हो रही थी। देखो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। So this week, read your articles carefully and read from every page. That's simple. We are dash in history. The old certainties are collapsing, new systems are being written. Let us not ask to be written into them, let us write them ourselves. So we are where? We are at a hinge. Hinge joint होता है elbow वाला joint. शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट होता है, तो बॉल एंड सॉकेट में आप पूरी तरीके से चला सकते हो, लेकिन एल्बो जॉइंट होता है जहां पे एक तरफ फिक्स पॉइंट है और उसके बाद आपका हाथ एल्बो की तरफ से कहीं पे मुड़ सकता है, मतलब आप ये फिक्स रखते हो एंड यू कैन मूव इट लाइक दिस, राइट। दिस इज कॉल्ड एट अ हिंज। क्रॉसरोड्स का मतलब होता है आप चौराहे पे खड़े हो, चार तरफ कहाँ जाना है पता नहीं है, तो यू आर एट अ क्रॉसरोड्स, यू डोंट नो विच रोड टू टेक, दैट इज इन अ डायलेमा, दैट इज द मीनिंग, राइट। At a turn, well, you need to turn, but then it is not about a turn, it's about being pivoted. At one point you are fixed. टर्न में तो आप पूरी तरीके से आगे डायरेक्शन में जा रहे हो ना, हिंज में आप एक जगह तो फिक्स हो, कौन से डायरेक्शन में जाना ये नहीं पता है। ठीक है, एट एन एज ऐसे होता है, क्लिफ का एज है जैसे बस गिरने वाले हैं, वो होता है द ब्रिंक ऑफ समथिंग, एट द एज ऑफ समथिंग, एट द थ्रेशोल्ड ऑफ समथिंग, ये आ जाते हैं कि किनारे पे रहना, तो ये किनारा नहीं है, एक ये फिक्स पॉइंट है। चलो अब इन वर्ड्स को ध्यान से समझेंगे। इंटररेग्नम, तो रेगना इज रिलेटेड टू रीगल, तो रीगल और इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। तो इन बिटवीन में अगर रीगल या किंग कुछ ऐसे आ जाए, मतलब द पर्सन हु इज रूलिंग, वो हो जाता है इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटररेग्नम का मतलब होता है इन बिटवीन। सपोज किसी इंडस्ट्री का सीईओ चला गया, अभी दूसरा सीईओ अपॉइंट करें, इस बीच में जो उस गद्दी को हासिल करेगा या जिसके हिसाब से वो काम चलेगा, दैट पर्सन इज द इंटररेग्नम देयर। सो ही इज द इंटरिम चेयरमैन, इंटरिम सीईओ, इस तरीके से। सो दिस प्रोसेस वुड बी इंटररेग्नम। एंटैंगल और इंटरट्वाइन सेम है, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशंस होते हैं, वो नहीं आएगा। एस्पाउस्ड, ठीक है। अब एस्पाउस्ड का मतलब होता है वे यू किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना या फॉलो करना, वो हो जाता है एस्पाउस।
तो यहाँ पे स्पाउस तो आएगा नहीं, स्पाउस मीन्स अ पार्टनर, बट व्हेन यू एम्ब्रेस सम पॉलिसी, एम्ब्रेस सम डिसीजन, राइट, तो आ जाता है उसे आप क्या कर रहे हो, यू आर एस्पाउसिंग दैट, राइट. अडेप्ट नहीं होता है, यू अडॉप्ट द पॉलिसी. आई गेव द वर्ड अडेप्ट एज अ ट्रैप. तो अडेप्ट मतलब एडजस्ट करना, हम एडजस्ट नहीं कर रहे, हम उस पॉलिसी को अपना रहे हैं. तो जब अपनाने की बात आती है तो एडॉप्ट आता है, राइट. एंड मॉडिफाई इज अगेन एडजस्ट और चेंज. अबेरिशन. सी, अबेरिशन में यू हैव द वर्ड error. The E double R means error, mistake, right? So now aberration may you can relate it to the word what? It is by mistake you are going somewhere, so that means deviation. तो सही डायरेक्शन में नहीं जाके आप डिविएशन में जा रहे हो, ठीक है. तो ये हो गया अबेरेशन, आपकी गलती हो गई है. अच्छा, दिस वाज द राइट पाथ एंड यू आर गोइंग, यू आर डिविएटिंग, ठीक है. तो ये डिविएशन हो जाएगा सही से थोड़ा सा हटके, दैट इज अबेरेशन. तो डिविएशन आंसर है. रेगुलरिटी इज जो हमेशा होता रहेगा. अबेटिंग इज टू हेल्प समबडी इन द क्राइम, एंड अबेयंस इज टू केप्ट इट, अबेयंस यानी पोस्टपोन कर लेना, कुछ समय के बाद किसी काम को करना था, इट वाज हेल्ड इन अबेयंस, ठीक है. तो थोड़े समय के लिए इसे हटा दो, बाद में देखेंगे, ऐसा होता है अबेयंस का, ठीक है. नेक्स्ट, डेक्रिपिट्यूड. तो डेक्रिपिट चीजें होती हैं, डेक्रिपिट फ्रेल, वीक. डेक्रिपिट बिल्डिंग्स हो सकती है, पर्सन भी हो जाएगा. तो फ्रेल होता है, वीक होता है, फाइन. तो वीक के लिए हम डेक्रिपिट डिसेंसी आउट कर लेते हैं. क्रिपल्ड यानी द पर्सन हु कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली, और क्रिपल कैन बी यूज विथ इकोनॉमी ऑल्सो, क्रिपल्ड इकोनॉमी और क्रिपलिंग इकोनॉमी, कुछ भी हो सकता है. हमारे पास वर्ड है इनफर्मिटी. इनफर्म का मतलब होता है पर्सन हु इज नॉट वेल, इज एन इनफर्म पर्सन. हॉस्पिटल के लिए हम इनफर्मरी यूज कर सकते हैं, राइट. अबैंडन इज टू लीव इट. तो जब भी ना कैसल्स को, पैलेसेस को अबैंडन किया जाता है तो वो डेक्रिपिट हो जाते हैं, ठीक है. तब उनका डेक्रिपिट्यूड इज इनफर्मिटी, क्वालिटी है वो. टू टॉक गिबरिश. हाँ, नॉन सेंसिकल बात करना. सो जैबर इज करेक्ट. फीवरिश अगर लगाया तुमने कि आईएसएच जैसे फीवरिश बात कर लो, वो नहीं आएगा. Discordant and melodious, these are opposites. Melodious is harmonious, जो something very pleasant to the ears, वो melodious होता है. Discordant is something that is not pleasant to the ears. तो discord is the opposite of accord, ठीक है. तो discordant हो जाता है. Jabber is like blather, nonsensical talk is gibberish and jabber. Profundity, you can understand the word. ये सही होना चाहिए तुम्हारा. गिविंग यू 4 seconds, 3, 2, 1. Here is the answer. So डेप्थ. प्रोफाउंड मतलब डेप्थ, प्रोफाउंड मानिए डीप होता है.
तो profundity is the quality of being deep that becomes the depth, राइट. सुपरफिशियलिटी ऊपरी तौर पर कुछ होना, वो सुपरफिशियल होता है. और जो डीप नहीं होता है वो शैलो, ऑपोजिट उसका. एफिशिएंसी हैज नथिंग टू डू विद द प्रोफंडिटी. ठीक है. प्रोफंडिटी होती है तो चीजें एफिशिएंटली की जा सकती है, बट प्रोफंडिटी वुड नॉट मीन एफिशिएंसी, सो टू से. एनिग्मेटिक पर्सनालिटी, समथिंग दैट इज हाँ, मैं आंसर बताने ही वाली थी. हाँ, समथिंग दैट कैन नॉट बी फिगर्ड आउट वो होता है एनिग्मेटिक. तो फिगर आउट तो आउट ही हो गया. कैन नॉट बी अंडरस्टूड, बट डिक्रिप्टेड यानी आपने एनकोड नहीं किया, आपने डिकोड कर दिया है. तो डिकोडेड और डिक्रिप्टेड यानी आपने एक कोड को सही कर दिया है, तो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. सो ऑल दीज आर ऑपोजिट्स. बैफलिंग, एनिग्मेटिक इज लाइक कंफ्यूजिंग, पजल्ड, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या है वो. ठीक है, वो हो जाता है एनिग्मेटिक पर्सनालिटी. ठीक है. Something that you are unable to understand or figure out. Hovering. Example दे रही हूँ, like a helicopter would hover over a building. ठीक है, over the stadium. Hovering होते, the tree, sorry, not the trees, the birds were hovering over the trees. ऐसा. ठीक है, तो ऊपर से घूमना. ठीक है, अब हवा में घूमना इस हवा में सस्पेंड होना, बोले यू आर नॉट लैंडिंग. पर्च का मतलब होता है बैठना, लैंडिंग. लैंडिंग, एरोप्लेन नीचे जा रहा है, लैंडिंग. डिसेंडिंग, अगेन एरोप्लेन नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग. तो जब क्रोज एंड ईगल्स जब ऐसे ना आसमान में से घूमते रहते हैं, उसे कहते हैं होवरिंग, राइट. मतलब ऐसे कई मूवीज देखोगी कि एक ऐसे डेड बॉडी लटकी हुई है ट्री से, अग्निपथ, और वहां पे चील कौवे जो रहते हैं ना, वो ऐसे ऊपर से घूमते रहते हैं, तो वो होवरिंग होगा. ठीक है. अब कोई भी चीज, अब सस्पेंडेड का मतलब क्या हुआ? समथिंग दैट इज there in the air, in between. It is not landing, it is not flying above, but it is there in between. तो उसे कहते हैं सस्पेंड. ठीक है. सस्पेंडेड हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, या किसी कॉलेज स्टूडेंट में उसको सस्पेंड कर दिया, कॉलेज ने उसे सस्पेंड किया. सस्पेंड, तो सोचो पुलिस ऑफिसर अगर सस्पेंड होता है तो क्या करता है? वो घर पे बैठता है, उसे सैलरी मिलेगी, काम पे नहीं जाता है. तो अब उसे पता नहीं है कि वो उसकी जॉब रहने वाली है या नहीं रहने वाली है. तो इज देयर इन बिटवीन, राइट. दैट इज कॉल्ड सस्पेंडेड. हेल्ड इन सस्पेंशन मीन्स डिसबिलीफ. I don't know what to think. I can't go with A, I can't go with B. So I was there in between, suspended in the air, right? Between the two things. ऐसे यूज होता है suspend. Malaise. So malady, malign. Malaise is an ailment, something wrong, something that is a disease, right? ये disease का मतलब होता है dead. Fatigue यानी weary, tiredness होना. Ailment यानी disease, and malign is to किसी का नाम खराब करना है, to defame somebody, to spoil the name. Mudslinging होता है, वो होता है malign. Presumptuous. देखो, presumptuous assuming से सिमिलर होता है, पर प्रिजम्पशंस का मेजर मीनिंग होता है कि आप इतना अज्यूम कर लेते हो कि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं समझते हो, एंड देन यू बोल्डली टेक स्टेप. सो जो बोल्ड स्टेप होता है ना, उसे प्रिजम्पशंस बिहेवियर कहते हैं.
कि आपने किसी और चीज को माना नहीं, समझा नहीं, सोचना नहीं है, और मैं तो ऐसा करूंगा, ऐसा बोल्डली, ऑडेसिटी जिसे कहते हैं ना, वो। सो बोल्ड ऑडिशियस बिहेवियर इज कॉल्ड अ प्रिजम्पशियस बिहेवियर। आपने पहले से ये मान लिया है कि देखो ये तो ऐसे ही रहेगा और ये तो ऐसे ही करेगा या बोलेगा। सो सिर्फ अज्यूमिंग नहीं आएगा। Assuming can become a verb formation also. So presumptions is majorly to do with being bold and audacious, right? Wrongly courageous, you can say. Differential has to do with respect. ठीक है. Last word है easy word है decoupled. तो decoupled यानी coupled का मतलब होता है साथ में रहना, तो इंटीग्रेटेड उसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा coupled का. ठीक है. एंगेज भी सेम थिंग, एंड कंबाइंड इज अगेन द सेम थिंग. तो ये तीन सिनोनिमस है. पर डीकपल्ड होता है अलग कर देना, तो डिसइंटीग्रेट होना, दैट इज डिसएंगेज, राइट. चलो, that's all for today. And I hope out of these 30 questions you at least got 17 to 18 correct. जो भी स्कोर होगा अब वो नोट डाउन करके रख लो. नेक्स्ट मंडे मंत्रा में हम फिर देखेंगे कि हमारे कितना स्कोर बनता है. एंड फॉर दैट, यस, यू हैव टू रीड द हेडिंग्स, रीड द न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज हिंदू की हेडिंग्स थोड़ी सी देख लो. ठीक है. और रीडिंग अच्छे से करो ताकि यू आर एबल टू नोट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स and write down the simplest meaning. Secondly, even if you have not read those sentences, no problem. You will get an indicator in the sentence itself so that you come to the word. And अगर इससे भी कम सही जाते हैं तो नो प्रॉब्लम. आपके पास इतने सारे वर्ड के मैंने मीनिंग्स दे दिए हैं, आपको वो लिखना चाहिए और सैटरडे संडे को रिवाइज करना चाहिए. दैट्स इट. द होल एक्सरसाइज इज अबाउट एनहांसिंग योर वोकैबुलरी. ठीक है. इट इज नॉट ओनली अ टेस्ट, बट इट इज हाउ टू एनहांस योर वोकैबुलरी. तो थोड़ा बहुत हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू भी कर देंगे और हमारे पास वर्ड्स इकट्ठे होते भी जाएंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो थैंक यू एंड सी.